यूहन्ना के अध्याय 6 में जाएंगे। The book of Gospel of John, chapter 6, verse 27. यूहन्ना के अध्याय सुसमाचार में 6 में 27 पढ़ेंगे। We saw this in the memory verse today. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man shall give to you, for on him the Father, even God, has set his seal. नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराया है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। And this was said by Jesus himself. और ये जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। And he's telling it to all of us to not to work for the food which perishes. और यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि उन भोजन के लिए आप परिश्रम ना करो जो नष्ट हो जाएगा, But we have to work for the food that will lead to eternal life, और हमें उस भोजन के लिए परिश्रम करना है जो अनंत जीवन के लिए हमें ले जाता है, and which the Son of Man will give to us. और प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र है, मतलब प्रभु यीशु जो हमें देंगे। Because God the Father has authorized him or made him responsible to give it this eternal life to all those who seek after him. क्योंकि पिता परमेश्वर ने इस पर ही हमें छाप दिए है और बताया है कि हमें अनंत जीवन देंगे। So there are two words here. One is the food and one is the labor. और यहाँ पे दो बातें हैं, एक है भोजन और एक है परिश्रम। So Jesus said people are laboring for food. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि लोग भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। And we all basically go to work so that we can have some food to eat. और हम सब आमतौर पे काम पर जाते हैं जिससे कि हमें अपने घर में खाना हो। That is the basic requirement. ये हमारी बुनियादी जरूरत है। So every human being, सभी मनुष्यों के लिए, whether he is rich, I mean, or poor, we want food to eat. और चाहे आप गरीब हो या अमीर है, हमें खाना जीवन जीने के लिए तो जरूरी है। And Jesus said that man shall not live by food alone, bread alone, but by every word that proceeds from mouth of God. और प्रभु यीशु ने बताया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। This Jesus quoted from Deuteronomy chapter 8. और ये प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण में 8 में से बताया है। Deuteronomy chapter 8 we can turn. हम व्यवस्था विवरण 8 में जाएंगे। Verse 3. वचन 3। Jesus quoted from this verse when he said to the devil told him, turn these stones, you are fasting for 40 days, into bread because you are hungry. और यीशु मसीह ने ये वचन तब कहा था जब शैतान ने उससे बोला कि आप तो भूखे हो, आप पत्थर को कह दो कि रोटी बन जाए। And here is read verse 3, and he humbled you and let you be hungry and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds from the mouth of the Lord. और उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर भी वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहेगा। God, what the children of Israel and promised them that they would go take them to the promised land that was flowing through milk and honey. और देखिए परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किया था कि आपको वो प्रतिज्ञा के भूमि में ले जाएंगे जो जहाँ पे दूध और मधु की धारा बहती है। But he took them through the desert. लेकिन प्रभु ने उसे उन सबको मरुस्थल से ले गया। And he did not provide them food and water. और उन्होंने उनको परमेश्वर ने उन्हें खाना और आगे नहीं दिया। And they began to cry out, what shall we do? There's no food. और वो फिर रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे तो खाना नहीं है। Why did God tell them these things? Why do these things to them? क्यों परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा? Because God wanted people's eyes to be on the Lord. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखें। And he gave them manna to eat. और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया खाने के लिए, which they had never seen in their whole life. और उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसे खाना को नहीं देखा था। And every day manna.
और हर दिन मन्ना। But the manna was very good and strong. और मन्ना जो था बहुत ही मजबूत था और अच्छा था। There was no disease among them when they ate manna. और उससे मन्ना के कोई बीमारी भी नहीं होती थी। They were used to eating fish and a lot of good, tasty food in Egypt. और जब मिस्र देश में वो रहते थे तो मछली खाते थे और काफी स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिलता था। Onions and so many tasty things they could make and eat. और प्याज और अलग अलग स्वादिष्ट भोजन भी वहां मिलते थे। But they were under bondage लेकिन वो काफी बोझ से दबे हुए थे and they were under their slaves. और वो गुलाम थे। But God wanted their eyes to be shifted up from food and the earthly things to heavenly things. और लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो ये थी कि उनको स्वर्ग पृथ्वी की चीजों को ध्यान ना दे के स्वर्गीय बातों पर ध्यान दे। Many times our eyes are only on what we can get from God. और कई बार हमारी आंखें वो वहां पे लगी रहती है जो परमेश्वर से हमें क्या मिलेगा। We want a good job so that we can live comfortably and have good food. हमें अच्छा काम मिलेगा कि जिससे कि हमें आरामदायक जीवन जीऊं और अच्छा खाना खाऊं। And that is a normal desire of everybody. और ये जो है बुनियादी लोगों की एक इच्छा होती है। And if God gives us all that we want, what will happen? और सोचिए जो हमें चाहिए परमेश्वर हमें सब कुछ देगा तो क्या होगा। We will forget God. हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। That has happened over and over and over again. और ये हर बार होते ही रहेगा। In Philippians chapter 3, it says, many believers, God has become their belly. और फिलिपियों के अध्याय बताता है कि कई लोग का जो है उनका पेट ईश्वर बन गया है। They forgotten about the true and living God and they want to eat some good food. और वो जीवित परमेश्वर को भूल गए हैं और वो भोजन को ईश्वर बना लिए The हैं। first priority is not God in their life. और उनका जीवन में परमेश्वर पहला स्थान नहीं पाया जाता That है। is what we see among all the Christians around and believers are all around. They start well, but later on the other priorities become first. Food becomes first important. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी विश्वासी जो है इसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में खाना जो है पहला स्थान बन गया है। परमेश्वर उनके जीवन में पहला स्थान नहीं पाया जा रहा But है। God is saying that you have to live for a short time in this world. Why are you bothered about these things? But what are you be concerned for eternal things? You're going to live for millions of years ahead. और परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जीवन तो बहुत छोटा है। तुम मेरे साथ सदा के लिए जीवन जियोगे, करोड़ों अरबों वर्ष जियोगे। तो यहाँ पे क्यों इस छोटे समय के लिए बिता रहे हो। Don't get concerned by all these earthly things which seem to be very important to everybody else, but not important to me. और इसलिए जो संसार की चीजें हैं क्यों इसमें ज्यादा मन लगाए रहते हो। अब जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है एक दिन नष्ट हो जाएंगे। So when our heart is kept on earthly things and food, then our desire for heavenly things becomes less and less and less. यदि आपका हृदय जो है संसारिक चीज से भर जाएगा तो आप परमेश्वर के जो इच्छा है स्वर्गीय बातें हैं सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। God said about the sin of Sodom and Gomorrah. परमेश्वर ने सदम और गमोरा के पापों के बारे में बताया। They had plenty of food. क्योंकि वहां पे बहुत ही खाना पीना बहुत ज्यादा था। They had lot of luxury. और बहुत सारे आरामदायक ऐशो आराम की जीवन था। With the result that they forgot God and they didn't think about God and they did not think about the poor people at all. और इसका परिणाम यह हुआ कि वो परमेश्वर को भूल गए। And because of that, their mind went on so many other things. और इसके कारण से क्या हुआ उनका जो मन था काफी सारी चीजों से भर गया था। They're very rich people in Sodom and Gomorrah. और सदोम गमोरा में काफी धनवान लोग थे वो। That is why Lot also went there. और वहां भी जो लूत था वहां गया। He said that is a good place to stay. और वो कह रहा था अरे वो तो बहुत अच्छा जगह है हम जा सकते हैं। There's a lot of good food. बहुत अच्छे खाने हैं। Not in the desert where Abraham is staying. We have to have such hot weather. Here there's a lot of entertainment, good food. अरे वो अब्राहम जो है वहां पे जाएंगे वहां तो मरुस्थल है सब रेगिस्तानी है। मैं तो यहाँ पे रहूंगा तो खाना पीना सब मिलेगा। That is what the world offers the Christians also. और ऐसे ही संसार में भी मसीह जीवन जो है काफी ऐसे जी रहे हैं। And Lot made a very bad decision. और लूत जो है काफी गलत निर्णय ले लिया। Because of that, he lost all the big property that he had when he was with Abraham. And he had to come out of Sodom and Gomorrah as a pauper with only his clothes. और फिर लूत जो है उसके कारण से काफी सारे नुकसान का सामना करना पड़ा। बहुत सारे धन संपत्ति है सब खो दिया और कपड़े ही बचे थे उनके। He had become a great man in Sodom and Gomorrah because he had a very good ideals and he was a good moral man. और वहां पे वो काफी अच्छा व्यक्ति बन गया था क्योंकि वो काफी आदर्श व्यक्ति
व्यक्ति था, but his children got spoiled and they were going to marry unbelievers. लेकिन उनके जो बच्चे थे काफी खराब हो गए थे और अविश्वासियों से शादी करना चाहते थे। And his wife also got so influenced by the lifestyle of Sodom and Gomorrah that she had a heart, was only longing for the things of Sodom and Gomorrah, the good food and the crockery and the cutlery, everything she had to leave behind. और यहाँ तक कि उनकी जो लूत की जो पत्नी थी वो भी वहाँ की चीजों से काफी प्रभावित हो गई थी और सब संसार की चीजों से वो प्रेम से भर गई थी। And there the two angels had to catch their hands and pull them out. और दो स्वर्गदूत आए थे, उनके हाथों को पकड़ के उनको बाहर निकाल के ले जाना चाहते थे। Say, God is very angry with these people. They don't think about God, only think about food and enjoyment, and all with that comes lot of sexual immorality. परमेश्वर जो था सदम गोमोरा के पाप से बहुत क्रोधित थे, वहां पे काफी पाप हो रहा था, बहुत सारे लैंगिक अपराध हो रहे थे, सब खाने पीने में मस्त थे, ऐशोआराम में जीवन थे, इसलिए वहां से उनको जाने के लिए बोला। When life is very easy, there's a lot of immorality and very bad types of immorality. यदि आपका जीवन काफी आरामदायक चल रहा है तो बहुत सारे पाप के अवसर आएंगे, बहुत सारे गलत राह में चल जाएंगे। But when the life is seeking after God, all these evil sins will be far away. लेकिन अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो पाप की जो आने का जो चांसेस है वो चला जाता है, We'll be in fellowship with God और आप परमेश्वर की संगति में हमेशा रहेंगे, and we will keep the things first priority as God in our life. और आप परमेश्वर को जो है पहला स्थान देंगे अपने जीवन में। Otherwise, we will just go astray. नहीं तो क्या होगा, अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे। We want to eat all the good things, experience the good things of this world. सॉरी, We want to experience all the good things of this world. हमने इस संसार की बहुत सारी अच्छी चीजों का अनुभव लिया है। Yesterday, I was going to do some paperwork, some Xerox. और कल जो है मैं पेपर वर्क के लिए कुछ जेरोक्स का काम था तो मैं गया था मार्केट में, And nearby, there is another shop, a wine shop. और वहीं नजदीक में एक जो है शराब की दुकान था। And a lot of people come to buy wine and different types of liquor. और बहुत सारे वहां पे लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के शराब आते हैं। Yesterday was Saturday. कल जो शनिवार था So I saw there was a bunch of young girls who also came to buy alcohol. और मैंने देखा वहां पे काफी सारी स्त्रियां जो थी, वह जवान स्त्रियां वहां पे वो खड़ी थी। They were all have good jobs, I think. They all have good jobs. और काफी उनके पास अच्छी जॉब है, नौकरी है, And there was a lot of, the big crowd was there. और बहुत सारी वहां पे भीड़ भी होते, And there were a lot of men also standing और behind them. बहुत सारे वहां पे मनुष्य भी खड़ा थे। And some of the men are laughing at them, smiling, looking at all these girls are coming to buy like liquor. और सब लोग वहां पे एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे और दारू पी रहे थे। First time I saw so many girls coming together as a group to buy liquor. और मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक गर्ल्स जो है, जवान स्त्रियां हैं, यहाँ पे ग्रुप में एक जगह इकट्ठा होके शराब पी रही है। Next to that, there is a tea shop और वहां पे बाजू में चाय की दुकान है, which is run by a Muslim man. और कोई मुस्लिम कम्युनिटी से चलाते हैं। I said him, "Do you know there are so many girls standing just next to your shop to buy liquor, और सॉरी, but to buy wine? There are so many girls standing next to the other shop buying wine." तो देखो वहाँ बाजू में है, यहाँ पे क्यों जो है यहाँ पे सब शराब को दुकान में खरीदने के लिए और पीने के लिए खड़ा है। Then he said, "सब लोग अभी बेवड़ा और बेवड़ी बन गया." और तो वो कहने लगा कि इस प्रकार से उन्होंने सब कहा। He said, "Not only that, they come in front of my shop and start smoking cigarettes. All these young girls. अरे यहाँ तक ऐसा भी नहीं है, वो मेरे दुकान के सामने सिगरेट पी के फूंकते हैं, They've got lots of money and they want to enjoy. क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसा है और वो बहुत सारा आनंद एंजॉय कर रहे हैं। They are far away from their parents. Now they are staying in Bombay on rent, and now they can do what they like." और वो जो है अपने माता पिता से काफी दूर रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, लेकिन ये काफी सारे पापों में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, There's no sense of shame at all. और उनको शर्म भी नहीं आता है, They're doing it openly. और वो खुले आम कर रहे हैं। This is what happens when you become very rich. यही होता है परिणाम अगर हम ज्यादा धनवान हो जाते हैं And तो। then we mix around with all these worldly type of people. और फिर हम संसारिक लोगों के बीच में काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। And we say, if men can enjoy, we also should enjoy. और अगर आदमी एंजॉय कर रहा है तो मैं क्यों नहीं एंजॉय करूंगा। We also can enjoy sex. और हम भी लैंगिक आनंद सुख ले सकते हैं। There is no moral life at all.
कोई भी वहां पे सही से जीवन नहीं जी रहे उसमें। And that is not only among unbelievers, now it's coming under believers also. और ये सिर्फ अविश्वासियों की बात नहीं है, ये विश्वासियों की भी बात है। And many pastors cannot tell it to their congregation because there is so much of corruption even in the pastors. और बहुत सारे जो पासवान है वो इस बात की प्रचार क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उस पाप में जीते रहते हैं। They say, let us show love to them and let us come bring them slowly. और वो जो है प्रेम की बातें करते, चलो हम लोग प्रेम में रहेंगे, प्रेम करेंगे। Sodom and Gomorrah became so worst in character. They had immorality, homosexuality. They were having sex with animals also. All these wicked things came because they want to enjoy. और सदम गमोरा में इतना दुष्ट बुराई क्यों हो गया, उनके चाल चलन चरित्र सब पूरा खराब हो गए थे, काफी दुष्टता भर गई थी। Sin wants to make you enjoy. Sin is very enjoyable. और पाप जो है आपको आनंद देगा, क्योंकि पाप में आनंद पाया जाता है। That is why people go into pornography. They get a sense of enjoyment. कि इसलिए कई बार बहुत सारे व्यक्ति जो है गंदे चलचित्र को देखते हैं। First it starts with good food. पहला अच्छा खाना, I want to eat good food. और मैं अच्छा खाना चाहता हूँ। Dal, rice and chawal dal is not enough for me. दाल चावल और राइस मेरे लिए अच्छा नहीं है। Now we have got Swiggy and what all these things we can just order. और आज तो स्विगी है, काफी सारे ऑनलाइन के शॉपिंग है, तो उससे मंगा लूंगा We मैं। can have the best of food. और अच्छे से अच्छा खाना मिल सकता है मुझे, Whatever we like. जो भी मुझे पसंद है। No need to work at home and slog around. आप घर पे काम करने की जरूरत नहीं है। We got lots of money. मेरे पास बहुत पैसा है। We can order and drink anything, eat out, fine dining. We can do everything we like. अब तो हम ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, खाने पीने की सब चीजें। That is why people work very hard. और इसलिए लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं। We want more money. हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। We can eat what we like. हमें जो पसंद है वो मैं खाऊंगा। We can travel here and there and eat what we like. हम लोग यहाँ वहाँ सब जगह जा सकते हैं, जो चाहते हैं कर सकते हैं। But that is not life. लेकिन वो जीवन नहीं है। We know what happened to Sodom and Gomorrah. हमें पता है कि सदम गमोरा का क्या हाल हुआ God है। destroyed them. परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया। These are the days of Lot. और ये जो है अभी लूत के समय जैसा है। And these are the days of Noah also. और ये नूह के जैसा है, नूह के दिन। There was a lot of prosperity. They forgot God and they began to eat and drink and go into all sorts of violence and sexual violence and sin. और जब हम बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत प्रॉस्पर हो जाते हैं धन संपत्ति में, हम बहुत सारे पापों में, लैंगिक अपराधों में चले जाते हैं। All them have got to die. लेकिन हम सबको एक दिन मरना है। You see all the great people of this world, one day everybody has to die. और चाहे वो कितने भी महान व्यक्ति इस दुनिया में क्यों ना, एक दिन उसको मरना है। You may have a house in England, you may have it in China, America, Australia, but you one day you have to die. चाहे आपका घर बंगला जो घर है लंदन में हो, इंग्लैंड में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, लेकिन एक दिन तो आपको मरना ही है। Jesus spoke about that man who was a rich man and who had plenty of food every day, good food and entertainment, and he never bothered about the poor people at all. यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति के बारे में बताया कि वो धनवान व्यक्ति था, उसके पास काफी संपत्ति थे, धन संपत्ति थे, बहुत सारे ऐसे इतने सारी चीजें थे कि उसे काम करने की आवश्यकता नहीं In spite of having all these things, he never bothered about the poor people. और इतने सारे चीज धनवान संपत्ति होने के बावजूद भी वो गरीबों को दया भी नहीं करता था। They buy things just to show off and that they have got a lot of money. और क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना महान हूं और अच्छा हूं। Recently, one of my relatives, they bought a coffee set. और हाल में ही मेरे जो पड़ोसी थे, My relative. ओके को मेरा रिश्तेदार, रिश्तेदार थे, उन्होंने कुछ कॉफी पॉट, coffee cups, mugs. कॉफी का जो मग है उन्होंने मंगाया। You know what the cost of that? आपको पता है उसका जो कीमत है कितना है? 12 cups cost 32,000 rupees. 12 जो कप है वो 72,000 के हैं। Imported it. और उन्होंने मंगाया बाहर से। And 3 cups broke on the way. और 3 कप जो है टूट गए। They gave her a refund. और उन्होंने रिफंड कराया। This is the vanity of people go to. और इस प्रकार से जब व्यर्थ के रास्ते में लोग जाते The हैं, more money they have, they want to show off and they want to buy things. और जितना ज्यादा पैसा होता है उनकी इच्छा जो है दिखाने के लिए हो जाते हैं। One day, one of my relatives, they went to the Taj. और मेरे कोई रिलेटिव थे, वो ताज देखने गए थे। 3 of them spent 18,000 rupees for one meal. और 3 जो लोग थे वहां पे 18,000 रुपये, 80 और 18
18,000. 18,000 रुपए जो है एक खाना के लिए उन्होंने They वेस्ट didn't किया। eat much, but they wanted to have food in the Taj. वो ज्यादा खाना खाए नहीं, लेकिन वो इनका एक शौक था कि मैं ताज में खाना खाया They हूँ। could have had good food in any other restaurant for 1,000 rupees also. और यहाँ पे भी 1000 में भी अच्छा खाना मिलता है। And they said afterwards the food was not that great, but they paid 18,000 rupees. और वो खाना उनके वर्ग के अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो 18,000 पेमेंट करके आए, They wanted to eat at the Taj. क्योंकि वो उनको ताज में खाना खाना था। But this is the craze people have about food. और लोगों की ये जो है पागलपन रहता है खाने के लिए। I heard about one sister, one lady. The first time she got a good salary, she went to the Taj and had food at the Taj. और मैंने सुना कि एक महिला थी, उसको पहला जब पगार आया था तो ताज होटल में गई और वहां पे खाना खाया। That was the craving of a heart. और ये जो है हृदय की जो इच्छा है, लालच है, ऐसा है। That is what people crave after. और इस प्रकार से लोग पागलपन जैसा करते हैं। Jesus said, don't crave after these things. और प्रभु ने कहा कि ये सब चीजों के बारे में तुम पीछा मत करो। The good food that you eat is there only, the taste is there only for 2 minutes in your mouth. अच्छा खाना कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो स्वाद है आपको 1-2 मिनट के ही मिलेंगे, After that, it's gone. और उसके बाद चला जाएगा। You may eat the best ice cream or the biryani or whatever good food you like. The taste is gone after 2-3 minutes. चाहे अच्छा खाना हो, आइसक्रीम हो, अच्छी चीजें हो, उसका जो टेस्ट है ज्यादा देर नहीं रहेगा, थोड़ा देर 1-2 मिनट रहेगा। But Jesus says, don't run after this type of food. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि आप इस चीजों के पीछे आप ज्यादा ध्यान मत भागिए। Crave for the food that leads to eternal life. उस खाने के लिए आप पीछा करें जो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। Let food not be your master. क्योंकि आप खाना जो है आपका वो अधिकारी नहीं करना चाहिए। I tell many people that don't make a fuss about food. और इसलिए आप सॉरी Don't make a big fuss. That is a big Huh? nakra. हाँ, आप खाने के मामले में इतना नखरा आप मत करो। Eat what is given before you with thankfulness. जो भी आपको दिया गया है आप धन्यवाद करते हुए आप खाएं। If you want to be a spiritual man, learn to eat all the types of food that people are eating. अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको जो भी परिस्थिति में जो भी खाना मिलता है आप उस पे ही संतुष्ट You करिए। know, when we used to go to Bangalore for the conference many years back, मैं जब बहुत साल पहले जब बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस होता था तो जाते थे। you know what was the food that was served? आपको पता है वहाँ पे क्या खाना सप्लाई दिया गया? Rice, sambar, and pickle. चावल और सांबर और अचार। All the days. और On all the days. और सभी दिन, No variation. कोई भेदभाव नहीं। Some people would grumble, can't eat all this type of food only every day. और कई व्यक्ति का जो ऐसा था स्वभाव कि वो कह रहे थे, अरे ये ऐसा खाना हम हर दिन नहीं खा सकते। Brother Zach used to make us train for that. और ब्रदर जैक ने उसके लिए क्या We should be trained to eat simple food. उनको परीक्षण दिया था कि साधारण खाना खाए। And we used to sleep on the floor with only one mat और हमें एक चटाई पे जो है नीचे सोना रहता था in the hall. हॉल में। That is a good exercise for us. ये हमारे लिए एक अच्छी व्यायाम है। So we learn to be grateful for everything. इसलिए हमें तो सीख जाएंगे कि हमें सब चीजों के लिए धन्यवाद रहना And we चाहिए। will not grumble about food. हमें कभी भी खाने के मामले में शिकायत नहीं करना चाहिए। Even in the church, the first grumbling in the early church started about food. और पहला चर्च भी जो था, कलीसिया था, खाने के मामले में ही शिकायत हो गया था। My people are not getting food, other people are getting food, and this and that, all the grumbling about food. मेरे लोग जो है खाना मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। So Jesus said, don't be bothered about food. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. यीशु मसीह ने कहा उन बातों की चिंता तुम मत करो, क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। God gave manna to them, that was angels' food. और परमेश्वर ने जो है उन्हें मना दिया जो स्वर्गदूत का खाना था। And that gave them tremendous amount of strength that they didn't have any disease because of that. और वो खाना खाने के बाद इतना सामर्थ्य मिलता था कि बीमारी भी नहीं होता था। Nowadays people eat all the rich food, the tasty food, and they get heart attack and diabetes and blood pressure and whatnot. और आज के दिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन है जिससे उनको हार्ट अटैक हो जाता है, बीमारी आ जाती है। They put on so much weight and then they become so lazy. और इतना आलसी भी हो जाते हैं, उनके अपने वजन भी बढ़ा लेते हैं। And that is why the Lord tells us that we have to experience discipline and seek after the important things in life, which is not food.
परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम अनुशासन में रहें और खाने के मामले में भी अनुशासन रहें। That is why the Lord tells us there is no force for us to fast. और इसलिए परमेश्वर जो है कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं उपवास रखने के In लिए। the Old Testament, there will be a lot of fastings. पुराने नियम में जो है काफी सारे उपवास करने का नियम है। In the New Testament, God says, when you fast, और सॉरी हाँ, नया नियम बताता है कि कब आपको उपवास रखना you है। can fast, but you must fast, but it all depends upon you. आप उपवास रख सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है आप कैसे So रखते that हैं। we will be left free from this control of food. और जिससे कि आप जो है खाने के जो नियंत्रण आपको करता है उससे आप आजाद हो सकते And हैं। we must teach our children also to eat all types of food. और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि जो खाना मिलता है उसमें वो सिखाओ। Otherwise, we encourage children to eat whatever they like. Then they say, I cannot eat brinjal, I cannot eat cauliflower, I cannot eat bhindi, this, that. And then it become very difficult for them to manage at home. और आप अगर आप बच्चों को उस बातों में प्रोत्साहन देंगे जो अच्छे अच्छे खाना ये वो अगर वो कहते हैं तो फिर बाद में उनको संभालना काफी कठिन हो जाएगा। I've seen it in my own life when I was staying in the hostel. मैं अपने जीवन के बारे में अनुभव किया हूँ जब मैं हॉस्टल में रहता था। The food was prepared in large quantity. और खाना जो है काफी बड़े पैमाने पर बनाया गया था। And many of my colleagues would go and say, hey, this is not good food. We'll go to the hotel and eat. और मेरे काफी जो साथी थे वो कहते थे अरे ये अच्छा खाना नहीं है, हम लोग होटल में जाएंगे खाएंगे। I was a believer. मैं विश्वासी था। The Lord told me, you eat. और प्रभु ने मुझे बोला तुम खाना खाओ। And then the Lord told me when to eat also. और प्रभु ने बताया कब तुम्हें खाना है। They should start serving the food at 7 o'clock. और वो लोग सुबह 7 बजे है खाना जो है शाम को. शाम को 7 बजे खाना सबको बांटते थे। But most of my friends would come around 9:30, 10 o'clock to eat. लेकिन ज्यादातर जो मेरे जो दोस्त थे वो सब 9 बजे 9:30 बजे आते थे। By the time the food, और उसके परिणाम क्या होता था, खाना जो है काफी ठंडा हो जाता था। the Lord told me go at 7 o'clock. लेकिन प्रभु ने मुझे बोला तुम 7 बजे जाओ। And then the chapati right hot, they used to give me right from the fire. They used to put my और जब मैं उस समय जाता था तो चपाती भी गरम गरम बनता रहता था और जो सांबर थे और सब्जी था वो बीन्स का सब मुझे गरम गरम मिलता था। and I used to enjoy it and put on weight also on it. और मैं काफी खाने का आनंद भी ले रहा था और मेरे वजन भी बढ़ गए थे। And all आवाज बंद हुआ ब्रदर, आवाज बंद हुआ। और जब खाना वाना हो जाता वो अच्छे अच्छे खाने खाने में लगे रहे। and then after eating all the food, he wanted to read the Bible. और अच्छा खाना खाने के बाद वो बाइबल पढ़ना चाहते थे। After eating the food, he began to sleep. और खाना खाने के बाद जो है उसने नींद आने लगा। He could not read the Bible. और वो बाइबल को पढ़ नहीं सकते थे। I said, before you eat, you read the Bible. और मैंने कहा कि आप खाना खाने से पहले बाइबल पढ़िए। Give God priority first, and then you will understand the Bible. Then your food also you will digest well. Otherwise, you will neglect the word of God. और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे खाना खाने से पहले तो आप प्रभु के वचन को भूलेंगे नहीं। We normally live to eat good food. हम ज्यादातर जो है अच्छा खाना खाने के लिए जीते हैं। Because everybody, when we ask, people meet each other, say, क्या खाना खाया? क्योंकि आमतौर पे हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो पूछते हैं आपने खाना खाया क्या? As children of God, we must say, क्या वचन पढ़ा क्या? लेकिन हम वचन परमेश्वर के वचन शिष्य होने के नाते हमें पूछना चाहिए कि आप वचन पढ़े क्या? अरे मैं वचन पढ़ा ही नहीं, पूरा दिन इतना बिजी था। तो ऐसा सोच सकते हैं। अरे you can read the word of God when you're in the train, you're in the car, lunch break, so much little time, 5 minutes, 7 minutes, take little bit snack on the word of God. अरे आप वचन तो परमेश्वर के आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं, समय मिला 5 मिनट काम पे और कहीं भी आप पढ़ सकते We हैं। have to get out of this mindset of food is very important. और इसलिए जो हमारा जो मन है खाने पीने में जो वहां पे जो सेटअप हो गया उससे वहां से निकलना है हमें। We see all the disciplined, successful people of this world,
food is not important for them. और देखेंगे आप इतिहास में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। The good students, the bright students, and all the hard working, for them, the work is important and then the food. और जो उनके लिए पहले काम ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कठिन परिश्रम करते हैं, अच्छे छात्र हो या अच्छे सफल व्यक्ति हो, वो खाने पे ध्यान ज्यादा So नहीं we देते। also in our own life, we should keep priority as God first and say, Lord, I want to think about you, I want to pray to you, I want to read your word. Then we'll find that all the other things settle down. इसलिए हमें अपने अपने जीवन में एक प्राथमिकता बना लेना चाहिए कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, बाकी सब चीजें बाद में आते हैं। Everything is possible and very practical in our Christian life. हर चीज हमारे जीवन में प्रैक्टिकली यानी हर दिन जो करते हैं उसमें संभव है। If others are not doing it, you do it. अगर आपको कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आप करिए। You will have a lot of time to do the right thing. आपको बहुत सारे समय है अच्छे काम करने के You लिए। will draw close to God. आप परमेश्वर के बहुत नजदीक आ सकते हो। Let us not be so busy doing our running after these things. हमें जो व्यस्त दिन की चर्चा है उस कामों में ज्यादा आप मत उलझ जाओ। Jesus, we know, told Martha, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, what did he say? क्या उन्होंने कहा? Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. मार्था मार्था, आप जो है बहुत बातों की चिंता करती हो, But few things are required. Only one thing is important, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है, एक बात महत्वपूर्ण है, that which Mary has chosen. मरियम ने उसे चुन लिया है। That is to hear the word of God, pray and have fellowship with God. और परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। Martha loved Jesus, मार्था जो है यीशु मसीह से प्रेम रखती थी, but she thought that good food will make Jesus very happy. लेकिन वो क्या सोचती थी कि अगर मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। Because of that, she became very restless, and that was the aim in life. और वो काफी जो है उसकी रेस्टलेस मतलब काफी वो बेचैन रहती थी। She must have been a good cook, वो अच्छा खाना बनाने में माहिर थी, but she said her priorities were all wrong. लेकिन उनका जो प्राथमिकता था वो काफी गलत था, मतलब अलग था। The first thing is important is to God first and to spend time with the Lord and experience the sweetness of fellowship with our Lord Jesus Christ. इसलिए पहला जो हमारा मकसद होना चाहिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए और परमेश्वर के से प्रार्थना करना चाहिए। Man shall not live by bread alone, but by the word of God. मनुष्य जो है रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। Man is a spiritual being. क्योंकि मनुष्य जो है एक आत्मिक है, We are spirit first because the God has given us a spirit. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। We are not like animals who only want to eat food. हम लोग जानवरों के जैसा नहीं है सिर्फ खाना खाते रहना है। We've had birds and animals in our house. Most important thing is that they have to have food. और हमें पास पक्षियां हैं, देखे जानवर है, उनका जो ज्यादा मेन मकसद है वो खाते रहते हैं। Recently, we had 2 small ducklings in our house. हाल में ही मेरे घर में 2 Ducklings. But बत्तख हैं, बत्तख थे। they used to cry when they didn't have food. वो काफी चिल्लाते हैं, उनके खाना नहीं मिलता है तो। So we are already run and give them food only all the time. और हम जल्दी से उसको खाना देते हैं। देखे They were very cute. वो बहुत ही क्यूट है देखने Now में। we have not give them the way when they were small, we gave it away. और हमने उनको छोटा था दे दिया। But the main aim in life is to eat good food. उनका मेन मकसद जो रहता है वो जानवर का खाना खाने का। All animals, birds want food. और सारे जानवर जो है पक्षियां हैं, उनको खाना बहुत अच्छा But लगता God is saying you are not an animal. I made you in my own image, and food is not the most important thing. है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, तुम्हारे लिए खाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। So don't labor for this food, इसलिए आप इस खाने के लिए परिश्रम जो है ना करे but जाकर। work hard for the food that leads to eternal life. उस खाने के लिए आप परिश्रम करें जो आपको अनंत जीवन के लिए ले जाता है। To hear the word of God. परमेश्वर के सुनने के लिए ध्यान दें। God said in the last days there will be a famine to hear the word of God. और अंत के समय में कठिन समय आएंगे और परमेश्वर के वचन के लोग सुनने के लिए काफी कठोर हो जाएंगे। There is a verse in Amos chapter 8. एमोस के अध्याय में ऐसा बताया गया है। Amos is chapter 8. एमोस के अध्याय में हम जाएंगे, हम 8 में। Amos, everybody knows, it is in the minor prophets. वो एक छोटे बज सकता है। Minor prophets. हाँ बज सकता Turn to Amos chapter 8. है। It's after Verse 11. chapter what? Chapter 8.
Amos chapter 8. Amos 8, आमोस 8 11. वचन 11। Behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine of bread and thirst for water, but for hearing the words of the Lord. Just a minute. Anyone found? Amos 8. Amos ka pustak is after Okay. Hosea, Hosea. Joel, Amos. थोड़ा ढूंढना, थोड़ा छोटी-छोटी book है. Yes. Anyone found? Please read Hindi. Yeah. Amen. So, in these last days, there will be a famine. और अंत के दिन में जो है काफी अकाल आएगा। Not the famine of food and water. खाना खाने के लिए या पीने पानी के लिए नहीं आएगा, Now there's lot of food available everywhere. क्योंकि हर जगह खाना जो है पूरी तरह से मौजूद है। When we were young, when we had to stand in the ration to buy rice and wheat. और राशन के पास में देखेंगे कितना लंबा Food was not available in the shops, and rice and wheat and dal were not available freely in the shops. और खाना पीना जो है अच्छे चावल वगैरह ये सब जो है फ्री में नहीं मिलेंगे आपको। They were. It is now food is available very freely to everybody. Even the beggars can afford food. और आज खाना भी अवेलेबल है पूरी तरह फ्री, की भिखारी को भी मिल जाता है। People are getting free food in the villages by the और government. गांव में है जो गवर्नमेंट के जरिए, सरकार के जरिए उन्हें मुफ्त में खाना मिलता है। But God said there will be a famine of hearing the word of God. लेकिन एक ऐसा समय आएगा अकाल का जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अकाल The आएगा, famine has come now. और अब आ गया है। God, they don't hear the word of God. वो परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे हैं। Why? Because they are so busy क्यों? having lot of food and drink, they cannot hear the word of God. क्यों? क्योंकि वो काफी सारे अपने कामों में और खाने पीने में जीवन व्यस्त किए हुए। There are a lot of messages on the internet everywhere, but God is not speaking to people's heart. और कितने सारे यूट्यूब ऑनलाइन में संदेश है वचन के, लेकिन किसी परमेश्वर जी उनके हृदय से बात नहीं कर रहे हैं। When a person hears the word of God, he changes. और जब व्यक्ति जो है परमेश्वर की सच में आवाज सुनता है तो उसका जीवन बदल जाता Their है, life changes and they repent and turn to God. और उसका जीवन बदल जाता है, मन फिराता है और प्रभु की ओर लौट जाता है। But people are hearing the word of God, but not changed in life. That is not the true word of God is coming into your heart. और लेकिन कई लोग हैं परमेश्वर के वचन सुन तो रहे, लेकिन उन वचन जो है उनके दिल में नहीं जा रहा है, उनका जीवन बदल नहीं रहा है। Because they don't want to leave their bad habits and their love for luxury and eating good food. क्योंकि वो अपने बुरे चाल चलन को, अपने जिससे वो प्रेम रखते वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। Whenever a person cries out to God, then God speaks to him. और जब कभी व्यक्ति जो है परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। At the time of Samuel, God only spoke to Samuel. और सैमुअल के समय में परमेश्वर ने सैमुअल से ही बात किया। Eli, the high priest, and his sons, they were priests. They were busy eating good food. और एली के जो काफी जो संतान थे वो सब जो खाने पीने में व्यस्त थे। Eli became very heavy in his body. और एली जो है अपने शरीर में काफी वजनदार हो गया था। God stopped speaking to Eli. और परमेश्वर ने एली से बात करना बंद कर दिया था। God only spoke to Samuel, who was a small boy. और परमेश्वर जो है सैमुअल से बात करना शुरू किया था, Because he had a hunger for God. क्योंकि वो सैमुअल को जो था प्रभु की भूख और प्यास थी। He said, my mother has dedicated me to him, to God, and I will live for God. और वो कहता था मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है, अब मैं परमेश्वर के लिए ही जीऊंगा। Where is the living God? और कहाँ है जीवित परमेश्वर? And God speak to you. और जब परमेश्वर आपसे बात करता है, There are so many believers who don't seek after God at all. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं वो पूरी हृदय से प्रभु को नहीं ढूंढते हैं। But if you cry out to God, God will speak to you. अगर आप परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे, And God will fill you with the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे। Not just knowledge, but really filled with the Holy Spirit, and we will walk and have fellowship with God. सिर्फ ज्ञान से ही नहीं बल्कि सच में आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे। And for that we have to labor. लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। We have to say, Lord, all my energy and my desire is to please you. और कहना है प्रभु
मेरी जितने भी ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है, सब प्रभु आपके लिए खुश करने के लिए जीऊंगा। And this word labor is a very hard word. और ये जो परिश्रम है, काफी कठिन परिश्रम करना है। Laborer means mazdoor. और जो लेबर होते हैं वो मजदूर रहते हैं। Those who God calls said, Jesus said, pray that God will send laborers into his field. और प्रभु यीशु ने बताया है कि आप प्रार्थना करो कि और भी मजदूर प्रभु भेजे। Laborers are people who do hard work. लेबर जो वो होते हैं जो काफी कठिन परिश्रम करते हैं। Jesus also did hard work. यीशु मसीह ने भी काफी कठिन परिश्रम किया He है। worked as a carpenter. वो कारपेंटर, एक बढ़ई का काम करते थे। The disciples of Jesus were many were fishermen. और काफी जो यीशु मसीह के जो चेले थे, शिष्य थे, वो मछुआरे थे। They did hard. They used to hard work. और वो काफी कठिन परिश्रम होता है उसमें। God speaks about 3 different types of people in the book of Timothy. He says the farmer, the athlete, and the soldier. और परमेश्वर ने जो है 3 प्रकार के लोगों को युद्ध क्या बताया है, योद्धा का, और सैनिक है, और The soldier. सोल्जर, सिपाही। They are all people who are very hard working. और ये सब लोग जो थे काफी मेहनती थे। Their body is fit and fine. उनका जो शरीर है काफी तंदुरुस्त और ताजा रहता था। The farmer is not fat, is thin. The athlete and the soldier fit. और वो मोटे नहीं होते थे, लेकिन जो एथलीट थे, योद्धा थे, सिपाही थे, काफी फिट रहते थे, सही रहते थे, They were तंदुरुस्त। not people who are just administrators sitting and making all these things. God wants people who are hard working people. और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो काफी मेहनत करते हैं। And those people who are hard working will be blessed by God. और जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, परमेश्वर उसको आशीष करते हैं। God hates lazy people. और परमेश्वर आलसी लोगों से बहुत ही दूर रहता, नफरत करता है। In the government, we know in our government offices we have lots of lazy people. आपको पता ही है, जो सरकारी जो लोग कर्मचारी रहते हैं, काम करते हैं, काफी आलसी रहते हैं। They come late. वो देर से काम पे They आते take हैं, long breaks. काफी लंबा जो है आराम करते हैं, And they leave before time. और समय से भी They leave before time. और समय से पहले भी चले जाते हैं। And nobody can take them because they got their job is permanent. और वो कोई भी उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करता, क्योंकि उनके काम जो है अस्थायी हो गए। And they are the ones who grumble the most. If you give them work, they grumble like anything. अगर कोई काम भी दिया जाए तो काफी वो शिकायत करते हैं। See, God allows you to do a lot of hard work so that you can learn what is to learn to labor. परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में काफी सारे काम आने देता है, जिससे कि हम कठिन परिश्रम करें। And when the Lord calls his children, disciples, he calls you to labor. और जब हम शिष्य चेलों को बताता है, प्रभु बुलाता है, तो हमें कहता है तुम एक कठिन परिश्रम करो। Laborers are for the Lord. और जो लेबर होते हैं, जो परमेश्वर के The Lord laborers with us, brothers and sisters. यीशु मसीह के जितने भी सब चेले थे, सभी लोग काफी परिश्रम करने वाले When थे। we read Romans chapter 16, रोमियो के अध्याय आप 16 में अगर देखेंगे तो we read about so many names that are written. कितने सारे जो है नाम लिखा गया है वहां पे। Tryphena, Persis, so many names. ये सब जो नाम है वहां पे लिखा गया है। They said many times, the Apostle Paul said they worked hard in the Lord. और वहां पे प्रेरित पौलुस ने बताया है कि वो परमेश्वर के लिए बहुत कठिन मेहनत करते हैं। God doesn't want us to be intelligent, he wants us to be hardworking. परमेश्वर जो है वो ज्यादा ज्ञानवान लोगों की जरूरत नहीं है, जो मेहनत करते हैं उनकी वो जरूरत है। And these are the people who will find the Lord. और ऐसे व्यक्ति जो है परमेश्वर से दर्शन पाएंगे। Philippians chapter 2 says, work out your own salvation with fear and trembling. और फिलिपियों के अध्याय बताता है कि आप जो है उद्धार का काम थरथराते और डरते हुए करते रहो। All these workout means a strong effort and energy on our side to seek after God and to read the word of God and to come for fellowship and to seek up with all our heart. और यहाँ पे काम करने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर को पूरे हृदय से ढूंढे, प्रभु के साथ संगति बिताए, प्रभु को वचन पढ़े, उनके साथ चले। These are the people who grow. और ऐसे व्यक्ति जो है आत्मा आगे बढ़ेंगे। The more we do exercise for the Lord and work for the Lord, we grow in the Lord. और अगर हम इस तरह से हम जीवन व्यतीत करेंगे, आप प्रभु में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। But if we are very lazy in our spiritual walk, then we will not grow. अगर आप आत्मिक जीवन में आप आलसीपन करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So God wants us to be laborers for Him.
और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए परिश्रम करें And the Lord will bless us in all that we do. और परमेश्वर जो है हमें आशीष करेगा हम जो कुछ भी करते हैं। The Lord says, pray that you will send, that God will send laborers into his field. और प्रभु यीशु कहते हैं कि आप लोग प्रार्थना करो कि प्रभु और भी मजदूर को भेजे। So when we ask God, Lord, please send laborers, we say, Lord, here am I, send me. और जब आप प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु मुझे भी मजदूर के समान आप बुलाओ। I don't want to sit in my life and earn up money and then just come for the meeting, but I want to do my best to please the Lord. प्रभु मैं ऐसे ही समय बिताना नहीं चाहता हूँ, ऐसे ही आना जाना मीटिंग और इधर उधर नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि सच में मैं प्रभु आपके लिए जीना I चाहता want हूँ। to read the word of God, I want to pray, I want to have fellowship, I want to bring others to know the Lord. प्रभु आपके मैं वचन को पढ़ूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा, आपकी संगति में रहूंगा। And that labor is not difficult because we love the Lord. और ये जो मजदूर मेहनत है वो आसान सॉरी आप प्रभु के लिए करते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। Hebrews chapter 6. इब्रानियों के अध्याय 6 में Verse 10 वचन 10 says, For God is not unjust so as to forget your work and the labor which you have shown towards his name and is ministered and is still ministering to the saints. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। In serving God and serving the saints, says God, these people did a labor, but that was the labor of love. और जो परमेश्वर की जो लोगों की सेवा करते हैं, पवित्र लोग और परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा जो है प्रभु उनसे बहुत प्यार रखता है। It is with love that we serve the Lord. हम जो कुछ भी जो करते हैं परमेश्वर के प्रेम में करते हैं। Whatever you do, brothers and sisters, you serve the Lord, do it with love. और जो कुछ भी आप करते हैं भाइयों बहनों परमेश्वर की सेवा के लिए आप प्रेम में करें, Even the smallest thing. चाहे वो कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो। Jesus loved me so much. He died for me, gave himself for me. I would have been killed by now. I would have gone to hell. Because of that, I do this for the Lord. यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया है, मेरे लिए दुख उठाया पापों के लिए। अगर मैं आज मर जाता तो शायद मैं नरक में चला जाता। Lord, I want to serve in gratitude to whatever God has given me. I want to serve the Lord. और प्रभु जो कुछ भी आप हमें करने के लिए कहेंगे आपके लिए मैं सेवा करूंगा। Whatever I'm doing for the saints, I'm doing for the brothers and sisters in the church, and for other people, I'm doing for the Lord. और जो कुछ भी हम कलीसिया में भाई बहनों के लिए हम करते हैं वो सब परमेश्वर के लिए ही कर रहे हैं। The Lord says, if you give a glass of water, cold water to any of my saints, you will get a reward. और प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम अपने लोगों को चेले को एक गिलास ठंडा पानी भी देते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड प्रतिफल मिलेगा। God is very generous when we do it with our heart and giving us rewards. परमेश्वर जो है बहुत ही दयालु है, वो देता है हमें, और क्योंकि हम जो प्रभु के लिए करते हैं। We must do it with a good heart. और हमें जो करना है वो पूरे सही हृदय से करना है। Many people do their work just to get some benefit from us, that God will reward them. और कई व्यक्ति जो है इसलिए करते हैं कि उनको रिवॉर्ड मिलेगा, वो गलत मोटिव से करते हैं। But Jesus said, when you do any good thing, he says we are. लेकिन हम प्रभु के शिष्य होने के नाते हमें ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं जो किया हूँ प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। We grumble inside. Many people grumble inside by doing work for the Lord. और हमें सॉरी ब्रदर, Many people grumble from inside while they're doing the work for the Lord. और कई व्यक्ति जो है परमेश्वर की सेवा या कुछ करते हैं तो अंदर से कुरकुराते हैं। We must love the Lord and love the saints. That's why we are doing it. और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है, परमेश्वर के लिए सब करना है। Not because of any compulsion or any dabaw, any force on us. और आपको कोई ये दबाव से नहीं करना है, ना ही कि आपको कोई कहा है इसलिए करना है, बल्कि खुशी से करना है। Bible says God loves a person who gives cheerfully. बाइबल बताता है कि जो खुशी से आनंद से जो परमेश्वर के लिए करता है वो परमेश्वर भाता है। We do it for the saints. We do it
for God's people because we love God's people. क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम से करते हैं, प्रेम में करते हैं और परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखते It's हैं। just like a mother who does good for the children in a house. और जैसे एक माँ जो है अपने बच्चों के लिए अपने घर में सब करती है, She doesn't get any reward at all. उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। She washes the cups, she washes the clothes, cleans the floor, all for the sake of the children, wakes them up in the morning, gets up early, does that. But she does because she loves the children. और वो इसलिए करती है, उसे तो सब कुछ काम करना रहता है, घर में सफाई भी, कप धोना, बर्तन धोना, सारी चीजें घर की काम करती है, वो सब बच्चों के लिए करती है। She doesn't get paid for it all. और सॉरी, She doesn't get paid for it. और उसके लिए वो काफी दुख दर्द भी नहीं होता है, No, she does not get any money for it. और उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है उनको। Nowadays, people are saying that even all the housewives should be paid. और आज के दिन जो है सब घर के जो काम करने वाले रहते हैं उनको पेमेंट They मिलता है, should get a salary उसको पगार मिलना चाहिए, because they are doing a lot of hard work. क्योंकि वो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। But a true mother will not work for salary. लेकिन सच्चे एक माँ होगी, वो कभी भी ऐसे नहीं कहेगी। 24/7 they work because they love their children, they love their husbands. 24 घंटे और 7 सप्ताह जो है प्रभु के लिए करेगी, अपने पति से प्रेम रखेगी, बच्चों से प्रेम That रखेगी, is true love, the nearest to God's love. और ये बहुत ही अच्छा प्रेम है, प्रभु को भाता है। And that is how we must labor for the Lord. और इसलिए हमें परमेश्वर के लिए जो है मेहनत करना चाहिए, Because we love the Lord and love his people. क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के लोग से प्रेम The रखते हैं, Lord will reward us. और परमेश्वर हमें जो है प्रतिफल देगा, Not only in this life, but also in the life to come. और इस जीवन में ही नहीं बल्कि एक जीवन जो आ रहा है उसके लिए भी। So then we will work hard in our own lives and also to encourage ourselves and encourage one another. और इसलिए हमें जब तक हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, हमें अपने भाई बहनों को प्रोत्साहन देना है, That is a wonderful life to live. और ये अद्भुत जीवन है जो हम जीना चाहते This is हैं। how the disciples live. और ऐसे ही यीशु मसीह के चेले जीते थे, This is how Jesus lived. और ऐसे ही यीशु मसीह जीवन जीते थे। God has given us this one short life to live for the glory of God. प्रभु ने हमें ये छोटी सी जीवन दिया है, हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए। People in this world only live for themselves, और इस संसार के लोग जो है अपने लिए जीते हैं, ऐसे ही जीवन जीते हैं, but we must live for the glory of God and for the glory of the saints and to bring other people to the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर के लिए महिमा, परमेश्वर के लिए ही जीना है, लोगों को प्रभु के लिए पास लाना है। So many missionaries have come from foreign countries. They left all their comfort of their homes to come to India to give the gospel to India. बहुत सारे व्यक्ति हैं बाहर देश से हमारे देश में आए, अपना सब कुछ त्याग दिया और यहाँ पे आके काफी दुख से सुसमाचार को फैलाया। Hundreds of years back, they have come to give the gospel. 100 साल पहले यहाँ पे काफी सारे लोग आए, सुसमाचार को दिया, They came here, lived here, suffered here, and died here. और यहाँ पे आए, दुख उठाया, सुसमाचार बताया और यहीं पे मर गए, And they prayed for us. और हमारे लिए प्रार्थना किया। You know why we are sitting over here? आपको पता है आप यहाँ पे कैसे आए हो? Many of them, when they came and they prayed and they worked, they said, people will come to know Jesus Christ, the क्यों? salvation in this country. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दुख उठाया, प्रार्थना किया, अपना हम सब के लिए जान भी दिया, सारी चीजें उन्होंने किया, इसलिए कि आज हम यहाँ पे हैं। One day when we go to heaven, we'll see all these people. और जब आप स्वर्ग में जाओगे तो देखना आप वहाँ पे सबको देखोगे। I heard once they said they used to come to Maharashtra and so many different places in India, and they would tell them, "You're going to last one monsoon." और आपको सॉरी ब्रदर, एक बारिश का सीजन में आप रहेंगे। और एक बारिश के सीजन में ऐसा मैं रहेंगे। हिंदी बताऊंगा। हम्म। सो ये लोग मिशनरी लोग आते थे, क्योंकि तभी तो 100 साल पहले, 2 साल पहले जो कोई बॉम्बे में इंडिया में आते थे, वो बीमार जल्दी होते थे, टाइफाइड होते थे, मलेरिया होते थे, और वो मर जाते थे। एंड तभी तो वो काम करते, रोते रोते वो लोग सुसमाचार बताते थे एक गांव में दूसरे गांव जाके, और बाद में 1 साल के बाद वो बीमार होके मर जाते थे। लेकिन वो हमेशा प्रार्थना करके मरते हैं। प्रार्थना किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। वी आर ऑल सिटिंग हियर बिकॉज एक दिन हेवन में जाएंगे, विल सी दीज पीपल क्राइड एंड प्रेड टू गॉड। दे लेफ्ट इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी करके इधर आके गिरा और मर गए। दे प्रेड एंड मेनी ऑफ देम वी आर सिटिंग over here because of their prayers. और आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काफी दुख उठाया, प्रार्थना किया है। And God will reward them tremendously. और परमेश्वर उनको काफी स्वर्ग में इनाम देंगे। Many of them are not known. और कई लोग हैं हम लोग जानते भी नहीं। God has also called us to follow them.
क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो चलते थे। God has given us a life to live. परमेश्वर ने जीवन दिया है जीने के लिए, One life and soon it will be past. और ये जो छोटा जीवन है पल भर का है, तुरंत ही चला जाएगा। We sang that song the apostle with Brother Zach has written, from this world I will soon be departing. जैसे भाई ब्रदर जैक ने भी बताया कि ये जो जीवन है तुरंत ही हम यहाँ से चले जाएंगे। Don't live for your family members, don't live for your relatives, don't live for your to make a big career of yourselves. These things will all perish. आप ज्यादातर यहाँ पे रिश्तेदारों के साथ, परिवार, काम धंधे, ये सब के लिए आप मत जियो, एक दिन तो आप छोड़ दोगे। All the worldly things will soon perish. संसार की सारी चीजें एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। Solomon was a man who ran after so many earthly things. He made big houses, gardens, and horses, so many things he had built up in his kingdom. और सुलेमान जो था अपने समय में काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, बड़े बड़े महल बनाया, और काफी सारी चीजें ऐशो आराम की जीवन जिया। वो भागते रहते, हमेशा भागते रहते, ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना। प्रभु के लिए कोई टाइम नहीं था। उसका पहले वो क्या था, वो बुद्धिमान आदमी था। प्रभु उनसे बात किया, बाद में वो बिल्कुल बेवकूफ हो गया। He became very foolish because he ran after all. इस चीजों के पीछे भागते रहे, काम करते रहे, और अंत में उन्होंने क्या किया, व्यवस्था विवरण में, वैनिटी इज वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है। मैं क्या करूं, मैं जो किया सब बेवकूफी है, सब व्यर्थ है। प्रभु के पीछा, प्रभु को मैंने ढूंढा नहीं है। उसने क्या, उसने पीछे पीछे करते सब मूर्ति पूजा में गए, उसको इतना सारा लेडीज को शादी किया, उनका जीवन बिल्कुल नीचे गया। इतना सारा विश्वासी भी होता है, पहले अच्छे आते हैं, बहुत उत्सुकता से आते हैं, बाद में उसका जीवन बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, पर पाप में जाके गिर जाते हैं। कितने पास्टर लोग भी है, व्यभिचार में गिरते हैं, पैसे की लालच में है, झगड़े करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, परमेश्वर की प्रेम उनका जीवन से गायब हो गया, व्यर्थ है, कोई बुद्धि नहीं, उनका जीवन बेवकूफ हो गया। हम लोग तो हमारा जीवन में प्रभु कहते हैं, देखो आप प्रभु के लिए काम करो, परिश्रम करो, एक मजदूर जैसे। मैं, प्रभु ने मेरे इतना सारा प्यार किया, इस दुनिया की खाना के लिए मैं खाने के लिए मैं, और फूड के लिए मैं परिश्रम नहीं करूंगा। प्रभु जो कुछ भी मैं किया, मैं प्रभु आपकी आनंद मेरे जीवन में होगा। मैं आपको धन्यवाद करके हर चीज में जो करता है, छोटी चीज बड़ी चीज, लॉर्ड मैं प्रभु की सेवा के लिए करूंगा, मैं आपके लिए करूंगा। मैं एक दिन मैं आंख खोलूंगा, मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु, यही मेरा मकसद होना चाहिए, मेरा इच्छा होना चाहिए प्रभु मेरा जीवन में। ऐसा जीवन जिएंगे तो आप प्रभु कहेंगे, आप शाबाशी, प्रभु से मिलेंगे। हम लोग निराश नहीं होगा, ऐसे लोग कभी निराश नहीं, प्रभु आपको उत्साह देंगे, आप कभी डिप्रेस नहीं होगा। मतलब कई बोलते हैं कि मैं तो डिप्रेस हो गया, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए हाँ बोलो, प्रभु के लिए ना बोलो। लोगों को खुश करने के लिए बैठो मत, डोंट लिव टू प्लीज पीपल। हाँ मुझे टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं नहीं खाना खा सकता हूँ, मेरा टाइम इसमें जा नहीं सकता है। कई लोग बुलाते हैं, चलो चलो इधर आ जाओ, ये करो वो करो। आज हम लोग सब एक मूवी के लिए जा रहा है, हम इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो हमको बोलना है मुझे इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे ये चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है, ये मुझे प्रभु का काम करना है। प्रभु मुझे बताएंगे, वही काम करूंगा, प्रभु की इच्छा करना है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा व्हाट इज माय फूड, माय फूड इज टू डू द विल ऑफ गॉड। मेरा खाना क्या है, प्रभु का इच्छा करना है। वो तो समारिटन वुमन के साथ बात कर रहे थे, क्यों इतना ज्यादा लंबा बात किया उन्होंने, तो बोलो ये समारिया के लोगों को उद्धार मिलना है, समारिया के लोगों को उद्धार, यही मेरा यीशु का मकसद था। तो यीशु के चेले खाना ब्रेड लाने के लिए गए थे, तो देखा यीशु मसीह ने इन लोगों औरत से बातें कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे, क्यों बात कर रहे, वो समझ गया। तो उन्होंने आओ प्रभु चलो खाना खाओ, हम लोग ब्रेड लेके आया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जो खाना खाता हूँ, मुझे ये खाना, मैं दूसरा खाना खाता हूँ, माई ब्रेड इज टू डू द विल ऑफ गॉड। तो उन्होंने सोचा क्या और कोई उसको खाना लेके आया है कि नहीं, नहीं, प्रभु का इच्छा था, लॉर्ड आज मेरा दिन, मैं प्रभु का इच्छा करना चाहता हूँ। प्रभु उत्सुकता से करो प्रभु के लिए, ऐसा नहीं करो कि मुझे प्रभु से कुछ मिलना है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे कुछ प्रभु से क्या मिला,
तो इसलिए लोग उनको जीवन वो पिछड़ जाते हैं, and they go back and they go into the world. They say, Lord, आपने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वे गाना गाते हैं, प्रभु के लिए हमको जीना चाहिए, प्रभु के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत ही प्रेम किया है। You have the labor of love for the Lord. Everything that we do, the smallest thing, जो कुछ भी हम लोग छोटी चीज करते हैं, हेवन में रिकॉर्डेड है। तो हम लोग भी कभी भूल जाते हैं, मैंने प्रभु के लिए किया, हमारा आदत बन जाता है प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए सोचना, सब प्रभु के लिए होना चाहिए। यही हमारा जीवन का, this should be the aim in our life, not to become great and to get something in this world like the people of this world. Let the people of the world think what they want about us. दुनिया के लोग अपोस्टल पॉल के बारे में गैलेशियंस चैप्टर 6 में कहता है, ये तो क्या कुछ हमारा कोई इच्छा नहीं है। He has become like a mad person. And अपोस्टल पॉल में भी उसका कुछ जो कुछ भी को कहता है, मैं भी I also don't bother about them, they also don't bother about me. I am living for God. To live and please people is the worst bondage. Let us live to please God. Whatever I do, I want to please God. So let us live like that, brothers and sisters. Let us labor for the food that leads to eternal life, and we will be growing strong in the Lord and be close to the Lord. प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। I thank God for today's encouraging words. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहन भरे वचन के लिए। Do not labor for the food that perishes. आप उस भोजन के लिए परिश्रम ना करें जो नष्ट हो जाएगा। So normally all our energy, all our time, all our thoughts, we are working for the money. और हम ज्यादातर जो है अपना जो शक्ति है, पैसा है और समय जो है, हम उन पैसों के कमाने में ही बिता देते हैं। So money makes many things. पैसा जो है काफी चीजें हमें बना देता है। Money gives everything. पैसा जो है इससे काफी चीजें आप ले सकते That हो। is human thought, my dear brothers and sisters. ये जो है मनुष्य के विचार है। But every good gifts and perfect gifts comes from above. और लेकिन सबसे जो भली बातें है, अच्छी बातें है, वो स्वर्ग से ही आता है। It comes from the Father of lights. परमेश्वर के ज्योति से आता है। Luke chapter 12 verse 15 says. लूका के अध्याय 12 में 15 बताता है। Please read, brother. Yes. लूका के अध्याय में हम जाएंगे, 12 में 15 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। Yes. Our life is not consist of what we have. हमारा जीवन जो है संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। So many people are thinking, I have so much money, so I can enjoy life like this rich fool. और बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे हमारे पास इतना सारा चीजें हैं, वो एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे मूर्ख धनवान ने किया था। Working up to 60 years. After 60 years, he cannot eat. और इतना वो काम किया कि वो उसके पास सॉरी ब्रदर cannot eat good food. अच्छा खाना भी नहीं खा पा सकता। So Solomon says that Ecclesiastes chapter 2 verse 10. Please और read. सपोपदेशक 2 में हम 10 पढ़ेंगे, देखेंगे, बताता है वहां पे। Please read Ecclesiastes. सपोपदेशक 2:10। Yeah. Just a minute. 2:10. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure, for my heart rejoiced in all my labor.
just a minute. Yes. Yes. So we know that Solomon was the wisest king and richest king in that time. और हमें पता है कि जो सुलेमान था काफी बुद्धिमान और काफी धनवान था उस समय में। Rich makes us, or rich makes us to sin. और ज्यादा हम जो धनवान हो जाते हैं तो पाप के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, You पाप में चले जाते see, हैं। because of our rich, we may think highly, like brother told, Taj Hotel. और जैसे हम धनवान हो जाते हैं तो हम काफी जैसे भाई ने बताया कि ताज होटल में वैसा हम हो जाते हैं That will lead to sin. और वो हमें पाप की रास्ते में ले जा सकता है Then sin will separate from God and we will go to hell. और हम परमेश्वर से दूर, पाप जो है परमेश्वर से दूर कर देगा और फिर हम नरक में चले जाएंगे। That is why God will not give riches to his children for saving them from hell. और इसलिए परमेश्वर जो है अपने बच्चों को खासकर वो ज्यादा धनवान नहीं बनाता है क्योंकि वो परमेश्वर को भूल के नरक में जा सकते हैं। So many godly people we see, godly men are lived in very difficult conditions. और अगर आप इतिहास में देखेंगे जितने भी ईश्वर के परमेश्वर के लोग हैं, बहुत ही कठिन दुखों से सामना करके जीवन जिया है। For example, how many struggle Apostle Paul had. और प्रेरित पौलुस भी कितने सारे कठिनाइयों से गए हैं। You see, so my dear brothers and sisters, don't work, don't labor for the food that perishes. और इसलिए भाइयों बहनों आप नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें। Matthew chapter 6 verse 19 to 21. मत्ती के अध्याय 6 में 19 और 20 में हम देखेंगे। Please treasure in heaven. और जो है स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। So means work for the Lord, आप परमेश्वर के लिए कार्य करें, labor for the Lord. परमेश्वर के लिए परिश्रम If करें। we work for the money, our heart is full of money, thoughts of money only. और अगर आप पैसे के लिए परिश्रम करते हैं तो हमारा पैसा हृदय से भर जाता है और हम फिर विचार जो है पैसे के बारे में For जाते हैं। where there is your treasure, there your heart also. और इसलिए प्रभु ने कहा कि जहाँ तुम्हारा मन रहेगा वहाँ, जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ मन रहेगा। James chapter 1 verse 19. याकूब के अध्याय 1 में 19 हम देखेंगे। Please read, brother. यस। Ah, 119. यस। याकूब के अध्याय 1 में 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, Sorry. सॉरी 26. 26 पढ़ेंगे। याकूब के अध्याय 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Yes. If we are to be godly men, we bridle our tongue. अगर हम एक ईश्वरीय व्यक्ति हैं तो हम अपने जीभ के पर लगाम रखेंगे। Here maximum we heard that bridle our tongue means slow to speak. और हम सुनते हैं कि हमें बोलने में धीमा रहना है। Think before you speak. और आप जब बोलते हैं उससे पहले आप सोचें। But here we can take this also, control your tongue on good food. और अपने जीभ को नियंत्रण में रखें और अच्छे खाना खाएं। When नहीं खाना है, सॉरी सॉरी, जीभ को नियंत्रण में रखिए और अच्छे खाना नहीं खाएं। when good foods served in front of you, proverb says, keep a knife in your neck. और जब आपके सामने अच्छा खाना रखा है, हाँ, अच्छा tasty खाना food. रख के टेस्टी खाना है तो आप चाकू जो है अपने गर्दन पे Yes. गर्दन पे रखें। So my dear brothers and sisters, control your tongue means like Paul says,
all things are lawful to me, but all things are not useful and edible to me. इसलिए हमें जो है जीव को नियंत्रण रखना है, और जैसे प्रेरित पौलुस के भी कहते हैं कि सब चीजें मेरे लिए लाभदायक तो है, पर सब चीज मेरे लिए उचित नहीं। God has given everything to enjoy this life. परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, हम उसका आनंद उठा सकते हैं। Eating tasty food is not sin, अच्छा खाना खाना पाप नहीं है, but always thinking about imagining about the food is sin. और लेकिन हर बार उसके बारे में सोचना, उसके उधर जाना, तो वो पाप चला जाता है। Sometimes if food is not tasty, then also eat and thank God. और आप हो सकता है कई बार आपको स्वादिष्ट खाना ना मिले, फिर भी आप उसमें धन्यवाद दीजिए। Food makes so many problems in the family, my dear brothers and sisters. और खाना पीना जो है काफी जो है हमें प्रॉब्लम, समस्या खड़ा करता है। You might have heard or read in the paper or heard in the news, TV news, that food, because of not good food, the marriage went to up to divorce level. और अच्छा खाना नहीं मिलने से कारण ही जो है काफी सारे तलाक तक भी पहुंच जाता है, ऐसा हम न्यूज़पेपर में भी देख पा रहे हैं। You see, simple food makes so many problems. तो देखते हैं ये साधारण खाना काफी सारे लोगों को समस्या खड़ा करता है। So, what shall we do, my dear brothers and sisters? तो हमें क्या करना चाहिए भाई बहनों? Labor for God. हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना चाहिए। John chapter 4, verse 24. यूहन्ना के अध्याय 4 में हम 24 पढ़ेंगे। Please read, brother. यस। John chapter 4, verse 34. 24 34. यूहन्ना के अध्याय हम 4 में 34 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Yes. God, Jesus told, I came from heaven to fulfill my Father's will. और यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। 5:30 also. और उसी में हम 30 भी पढ़ेंगे, 5 में यूहन्ना Yeah. 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। This is the will of Father, my dear brothers and sisters. और यही परमेश्वर की इच्छा है भाई बहनों। Whatever God says, Jesus said. और जो भी पिता ने कहा वही यीशु मसीह ने हमें कहा। 6:38. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of whom he sent me. यूहन्ना के अध्याय 6 में 38 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। Yes. We also called to do the will of God. हम सब भी परमेश्वर की इच्छा के करने के लिए बुलाए गए हैं। So, 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों में जाएंगे। chapter 10, अध्याय 10 verse 31. वचन 31। Therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. चाहे आप खाओ या पियो या जो कुछ भी करते हो, आप परमेश्वर की महिमा के लिए करो। So, and Colossians chapter 3, verse 17. कुलुस्सियों के अध्याय 3 में 17। कुलुस्सियों के अध्याय 3 में हम 17 पढ़ेंगे। And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. चाहे आप जो कुछ भी आप करते हो काम से या शब्द से, आप परमेश्वर की महिमा के लिए करो। So if we do the will of God, we will become brothers and sisters of Jesus Christ. अगर आप परमेश्वर की इच्छा का पूरा जीवन जीते हैं तो आप यीशु मसीह के हम सब भाई बहन बनते हैं। If we do the will of God, God will hear our prayers. अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे आप चलेंगे करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। You don't think that small thing work or a small work
I did may go waste. तो आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैंने जो एक छोटा काम किया है कहीं व्यर्थ ना हो जाए। It will go unnoticed. वो आपके मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं No, होगा। nobody in the church appreciated, कोई भी कलीसिया में आपको जो है सराहना नहीं देता है, but God is watching. लेकिन परमेश्वर जो है आपको देख रहा है। God, Jesus told, even a small cup of cold water, you will get reward from heaven, my dear brothers and sisters. यीशु मसीह कहते हैं यदि आप जो है एक गिलास ठंडा पानी भी आप देते हैं तो परमेश्वर आपको उसमें आशीष करते हैं। Finally, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. और हम अंत में एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में 58। Your labor for the Lord will not go in vain. आप जो प्रभु के लिए जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। So we labor for God, God will bless us. Amen. और इसलिए हम परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। So our work, हमारा खाना क्या होना चाहिए? प्रभु की इच्छा करना, वही हमारा जीवन है, वो हमारा खाना है। रोज मैं आपका इच्छा कर रहा हूँ प्रभु, और आपकी सेवा करूंगा। जो कुछ भी चर्च में सेवा कर रहे हैं, दूसरों को भी सेवा कर, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। प्रभु कहता है मैं आपको बड़ा प्रतिफल देंगे। इसलिए हम लोग को मेहनत करना चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु के पास जाना है, प्रभु मैं कितना बड़ा पापी था प्रभु, ये जीवन मेरा बहुत छोटा है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। हम लोग अपने आप के लिए जिया, अविश्वासी थे तभी हम जिया, अब विश्वासी होने के बाद भी हम लोग इतना लालची थे। यीशु मसीह का देखो, ये लालच के पीछे मत जाओ, मेहनत करो, प्रभु आपको दे देंगे। जितना आपके पास है वो संतुष्ट हो। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव and don't be like the people of this world who are pursuing after all these worldly things. God will give you faith, promotion, wealth, health, everything, but seek God first in your life. प्रभु को पहला स्थान दे दो, तो प्रभु जरूर हमको देंगे। ये हमारा प्रार्थना, दिल की इच्छा होना चाहिए। सब मूर्तियों को हटाना चाहिए हमारा जीवन से। प्रभु, I don't want to do that. I don't want to waste my life on this world. Already बहुत समय मैंने नष्ट किया है। We have already wasted such a lot of time. Lord, the small things in life, I want to please you. I want to please you in prayer, singing after you, serving one another. And Lord, my life will soon go away. कभी भी हम लोग जीवन भी खत्म हो सकता है। So let us live for the glory of God, my dear brothers and sisters. Praise the Lord. ये इसके ऊपर हम लोग वीकडे मीटिंग्स में भी चर्चा करेंगे, मंगलवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। So every second Saturday we will have youth meeting.